Good morning, students. Today we are going to discuss about a very important topic, that is Young's double slit experiment, YDSE it is called in short. Thomas Young demonstrated the interference pattern by producing two real coherent sources by using two narrow slits S1 and S2. When a monochromatic light is allowed to fall upon the slits, the interference pattern in form of alternate dark and bright fringes was seen on the screen. This was the experimental arrangement done by Thomas Young. He took a monochromatic source of yellow light, yani sodium light, and he used a slit board and produced two narrow slits S1 and S2. When light from the source emit in form of crest trough, crest trough, crest trough. The light in form of wavefront moves forward. When light comes on slit 1, from slit 1, again the light slit 1 behave like a fresh source, and light again start emitting like crest trough, crest trough. सेम हैपन्स टू द S2 ऑल्सो. S1 और S2 दोनों से क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में लाइट बाहर निकलती है. दिस लाइट व्हेन इंटरसेक्ट, व्हेन सुपरपोज ईच अदर इन फेज प्रोड्यूस ब्राइट फ्रिंज एंड आउट ऑफ फेज प्रोड्यूस डार्क फ्रिंज. लेट अस सी हियर corresponding to this point here, crest trough to trough is meeting. Here at this point crest to crest is meeting. Here again trough to trough is meeting. Crest to crest is meeting. So the corresponding intensity on the screen is bright. That we say maxima is being formed. Here at this point, if we see, crest is meeting at trough. Here crest is meeting with trough. Here crest is meeting with trough, means the uneven superposition is taking place. Superposition in out of phase is taking place. So dark fringe will be formed. Similar pattern will be seen on the screen. So this is the experimental setup of Thomas Young. Here it is the slit board, it is the screen, and this is the monochromatic light. This is the source of monochromatic light S. Now we move on to theory of interference pattern. Expression of fringe width we are going to find in this theory. Let us suppose a monochromatic source of light S sending light of wavelength lambda. Lambda wavelength की लाइट ये भेज रहा है to the slits, narrow slits. Slits बहुत wide नहीं है, बहुत narrow है, बहुत narrow slits है S1 and S2. Both the slits are separated by a small distance, that is small d. दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है, एंड द सेपरेशन फ्रॉम द slit to screen is d. The interference pattern will be seen on the screen. Again seen the light is spreading from source S in form of crest trough, crest trough, crest trough, and so on. When light reaches at S1, from Huygens principle, S1 and S2 will behave like a fresh source of light from where light emerge in all direction at equal speed. So if we see one ray of light from S1 goes to C, other wave of light from S2 also reach C. So the distance covered by light from S1C and S2C is equal. So this is what? Both the light are meeting in phase. दोनों लाइट का फेज डिफरेंस 0 है, और हमें पता है अगर फेज डिफरेंस 0 हो, दोनों लाइट का पाथ डिफरेंस 0 है. अगर पाथ डिफरेंस 0 हो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनने वाला है. तो ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर मैक्सिमा बनने वाला है. मैं MX लिख रहा हूं मैक्सिमा के लिए. यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा सेंटर ब्राइट, जिसको हम कहते हैं. अब मैंने मान लिया कि यहां से कोई लाइट किसी पॉइंट P पर चली गई. ये पॉइंट P मैंने स्क्रीन पर लिया है. Light from S1 and S2
is meeting at another point P. P पर पड़ने वाली लाइट मैक्सिमा बनाए या मिनिमा, ये डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पर. तो we can say light from S1 and S2 meet at C with zero path difference. क्योंकि लाइट ने दोनों केस में बराबर पाथ कवर किया है, तो जीरो पाथ डिफरेंस पर हमने देखा. इसका मतलब यहां पर एक मैक्सिमा बनने वाला, एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा. हमने मान लिया कोई एक पॉइंट है P जो सेंटर ऑफ स्क्रीन से y डिस्टेंस अप है, तो y डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर क्या बनेगा इसको देखते हैं. So this is the center of screen C where maxima is formed. Let us suppose another point P at a distance y from the center. What will be the fringe on the forming on P? P पर maxima बनेगा minima. This is decided by the path difference. So fringe forming at any point P is decided by path difference between light S1P एंड लाइट S2P. S1 से P तक जो लाइट पहुंचती है और S2 से जो P तक लाइट पहुंचती है, इस लाइट के पाथ डिफरेंस पर डिसाइड होगा ये नेचर ऑफ फ्रिंज. हमने मान लिया डेल्टा एक्स बी द पाथ डिफरेंस. इसका मतलब पाथ डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? S2P माइनस S1P. दैट्स व्हाई वी कैन से डेल्टा एक्स इक्वल टू S2P माइनस S1P. फ्रॉम फिगर, अगर मैं फिगर से देखूं तो पहला ट्राइंगल में जूम करता हूं S1PA. इन S1PA मैं कह सकता हूं S1P का स्क्वायर इक्वल टू S1A का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर. S1A तो हमें पता है अपेरेंटली D है, तो हम कह सकते हैं S1P का स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर प्लस ये जो मेरे पास PA आ रहा है, PA इज नथिंग, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है भाई, जिसमें से हाफ ऑफ द सेपरेशन ऑफ द स्लिट यानी D/2 इज सब्ट्रैक्टेड. सो आई कैन से y माइनस D/2. ये डिस्टेंस जो है y माइनस D/2 बनेगा. सो आई कैन से S1P इक्वल टू D स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. स्क्वायर रूट को मैंने एक्सपेंड कर लिया, इस स्क्वायर को मैंने एक्सपेंड कर दिया, तो D स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन 4 माइनस YD. ये इक्वेशन सेकंड मैंने माना. इसी तरह से मैं ट्राइंगल S2PB की बात करता हूं. ट्राइंगल S2PB, इस ट्राइंगल में एक बार फिर मैं देखता हूं S2P का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा S1B का होल स्क्वायर प्लस PB का होल स्क्वायर. S1B और प्लस PB, बट PB इस बार मेरे पास है y प्लस D हाफ. तो I can say S2P can be written as capital D square plus y plus D half का whole square. Expanding again, S2P square can be written as D square plus y square plus D square by 4 plus yd. ये इक्वेशन नंबर 3 है. इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम माइनस करें तो व्हाट कम्स? S2P square minus S1P square can be written as D square plus D square plus y square plus D square upon 4 प्लस YD माइनस D स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 4 प्लस YD. इक्वेशन सेकंड में जो टर्म पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया. अब हम देखें D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, Y स्क्वायर से Y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और D स्क्वायर अपॉन 4 से D स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल हो रहा है. तो व्हाट रिमेन्स मेरे पास 2YD. तो और इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो हमारा सॉल्यूशन है, इसको हम कहते हैं एक बार इनका सम एक बार इनका डिफरेंस. S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P, ये इसको एक्सपेंड किया, बिकम्स इक्वल टू 2YD. लेकिन यहां पर एक चीज और याद रखनी है आपको, पॉइंट P जो है दैट इज नॉट एट ए फार डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. पॉइंट P है बहुत क्लोज होता है सेंटर के. ये डिस्टेंस जनरली माइक्रोमीटर के ऑर्डर में होती है, मिलीमीटर के ऑर्डर में होती है. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं S1P और S2P दोनों जो है वो अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन यानी कैपिटल D के इक्वल होंगे. दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन के इक्वल माने जाएंगे. इसका मतलब मैं दोनों को D लिख सकता हूं. याद रखें डिफरेंस में D नहीं करूंगा, डिफरेंस में तो 0 हो जाएगा. मैं सम में, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा ज्यादा है तो ये उतना ही कंपैरेटिवली कम होगा, दोनों का सम 2D के बराबर आएगा. तो आई कैन से
S1P एंड S2P दोनों का जो सम है वो 2D के इक्वल होगा। पुटिंग द वैल्यू, हमें पता है S2P प्लस S1P तो हो गया हमारे पास 2D, S2P माइनस S1P फ्रॉम इक्वेशन 1 है डेल्टा एक्स, और ये 2RD, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस कम्स y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। यही है मेरे पास पाथ डिफरेंस जो मैंने ऑब्टेन किया फ्रॉम द फिगर। बट वी नो, हमें पता है एट पॉइंट P मैक्सिमा विल बी फॉर्म्ड ओनली इफ पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये हमने कल पढ़ा था। और हमें पता है डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं यहां इक्वेशन नंबर 4 से देखूं और इक्वेशन नंबर 5 से देखूं तो मैं कह सकता हूं वाई डी अपॉन कैपिटल डी शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, और y शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन डी। यही है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा फॉर्मेशन हियर, n इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा है। अगर हम देखें यहां से तो पॉइंट P का डिस्टेंस y अगर n लैम्डा डी अपॉन डी के इक्वल है तो फिर यहां पर मैक्सिमा बनेगा। हमने ये भी पढ़ा था कि पॉइंट P पर मिनिमा बनेगा अगर पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2 यानी वेवलेंथ के हाफ का और मल्टीपल हो। अब ये कहा मिनिमा बनने की कंडीशन, यानी डेल्टा एक्स तो मेरे पास वाई डी अपॉन डी था, तो आई कैन से वाई डी अपॉन डी कैन बी रिटन एज 2n+1 लैम्डा अपॉन 2, यानी y इक्वल टू 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2 स्मॉल डी। यही है कंडीशन ऑफ मिनिमा फॉर्मेशन। स्क्रीन पर मिनिमा इन पॉइंट्स पर बनेगा। तो दिस वे वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द स्क्रीन। अगर पॉइंट P का डिस्टेंस y इस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है तो मिनिमा बनता है। अगर पॉइंट P का डिस्टेंस y इस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है तो मैक्सिमम बनता है। n की वैल्यू यहां पर 0 1 2 3 4 यानी किसी भी नेचुरल नंबर के बराबर ली जाएगी। हियर n इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। Now from here we will see the position of maxima and minima on the screen, and hence we will study the interference pattern. We know position of nth maxima is given by this y equal to n lambda d upon d. Here I have just written yn for the notation. Here n changes from 0 to infinity. एक natural number है. If I put n equal to 0, then it will be written y0, that is the position 0. This is corresponding to the center of the screen. y0 is corresponding to center of the screen. If I put n equal to 1, then y1 equal to lambda d upon d. If I put n equal to 2, then it will be 2 lambda d upon d and so on. So these are the position of maxima on the screen. Position of nth minima on the screen is given by y dash n equal to 2n+1 lambda d upon d. Just to separate, मैंने y dash के केस में, मिनिमा के केस में y dash लिख लिया. It is y itself, but just to separate मैंने y को y dash लिख लिया in case of minima. n equal to 0 1 2 3 and so on. ये चलेगा. तो अगर मैं n इक्वल टू 0 रख रहा हूं तो y बेस 0 क्या होगा, लैम्डा डी अपॉन डी, क्योंकि 2n यहां से 0 हो जाएगा और लैम्डा डी अपॉन 2d यहां पर आएगा. अगर n इक्वल टू मैं 1 रखता हूं तो मेरे पास आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 3/2 लैम्डा डी अपॉन डी, y2 डैश 5/2 लैम्डा डी अपॉन डी एंड सो ऑन. तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मिनिमा ऑन द स्क्रीन. अगर मैं इन पॉइंट्स को स्क्रीन पर प्लॉट कर लूं, मैंने मान लिया दिस इज द स्क्रीन, स्क्रीन का सेंटर मैंने यहां से लिया, ये सेंटर ऑफ स्क्रीन. एक तरफ मैं पॉजिटिव पॉइंट लेके चलूंगा, एक तरफ नेगेटिव पॉइंट लेके चलूंगा. तो यहां से अगर मैं पहला पॉइंट मैंने प्लॉट किया लैम्डा बाई 2,
इसमें याद रखें डी अपॉन डी मैंने यहां पर जो है मल्टीप्लाई में रखा है, ये इन सारे पॉइंट्स के साथ डी अपॉन डी की मल्टीप्लाई होगी। जस्ट टू मेक द रिप्रेजेंटेशन इजी मैंने यहां से डी बाई डी सेपरेट कर दिया। तो ये पॉइंट है कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा बाई 2, ये पॉइंट है कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, ये पॉइंट है 3 लैम्डा बाई 2, ये है 2 लैम्डा, ये 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, प्रोसेस विल गो ऑन द नेगेटिव साइड ये नेगेटिव लैम्डा बाई 2, ये नेगेटिव लैम्डा, ये -3 लैम्डा बाई 2, ये -2 लैम्डा और ये -5 लैम्डा बाई 2 दिस वे। अब हमें पता है जब पाथ डिफरेंस 0 था, स्क्रीन पर डिस्टेंस 0 थी हमारी, तो उस टाइम मैक्सिमा बना था mx, ये मैक्सिमा बना था। जिस टाइम हमारे स्क्रीन पर पाथ डिफरेंस लैम्डा, जिस टाइम जो y की वैल्यू थी लैम्डा डी अपॉन डी की इक्वल थी, तब भी मैक्सिमा बना था। जब 2 लैम्डा था तब भी मैक्सिमा बना था। अगर मैं इसको नेगेटिव रख देता, n की वैल्यू -1 रखता, तो इसका मतलब यहां भी मैक्सिमा बनता और ये भी मैक्सिमा की पोजीशन है। अगर हम देखें तो स्क्रीन पर जब डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 के कोरस्पॉन्डिंग थी तो हमारे पास मिनिमा बना था। जब 3 लैम्डा बाई 2 के कोरस्पॉन्डिंग थी तब भी मिनिमा बना था, 5 लैम्डा बाई 2 पर भी मिनिमा बना था एंड सो ऑन द नेगेटिव साइड। इन पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ता हूं तो दिस पैटर्न इज द इंटरफेरेंस पैटर्न विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। जिनके अंदर मैंने रेड किया ये मैक्सिमा यानी ब्राइट फ्रिंज को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला जो फ्रिंज है मेरे पास जो प्लेन है ये मुझे मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस वे वी कैन से ऑन द स्क्रीन अल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। सारी मैक्सिमा इक्वली इंटेंस होंगी, सारी मिनिमा इक्वली डार्क होंगी। तो ऑल द फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। नंबर ऑफ फ्रिंजेस, जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ का मतलब यहां से हम कैलकुलेट करते हैं सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस। दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज के बीच का जो सेपरेशन है उसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ और बीटा, सेपरेशन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंज और separation between any two successive bright fringes is called fringe width। दो लगातार फ्रिंज के बीच का जो एक जैसी है, चाहे वो दोनों मिनिमा हो चाहे वो दोनों मैक्सिमा हो, दोनों के बीच का जो गैप होगा दैट वी कॉल फ्रिंज विड्थ। अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ की बात करता हूं तो ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ इज सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क, दो लगातार डार्क फ्रिंज के सेपरेशन को हम कहते हैं ब्राइट फ्रिंज की विड्थ। Fringe width of bright fringe is equal to the separation between two successive dark fringes। यानी I can say beta equal to y2 dash minus y1 dash and हमें पता है y2 dash क्या था मेरे पास 5 lambda d upon d और y1 dash क्या था मेरे पास 3 lambda d upon d। यहां पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप y5 minus y4 भी ले सकते थे, y8 minus y7 भी ले सकते, दो लगातार सक्सेसिव लेने। तो यहां से मैं कह सकता हूं जो इनके बाद आएगा दैट इज बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। ये फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ है, आई एम सॉरी, दिस इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अगर मैं डार्क फ्रिंज की बात करूं तो बीटा इज इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज। अगर मैं डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ की बात करता हूं तो दो सक्सेसिव जो हमारी ब्राइट फ्रिंज है उनके बीच का सेपरेशन मुझे चाहिए होगा, तो ये होगा यहां पर बीटा। और यहां से मैं कह सकता हूं y2 माइनस y1, y2 मेरे पास था 2 लैम्डा डी अपॉन डी और y1 था मेरे पास लैम्डा डी अपॉन डी। अगेन मेरे पास जो बीटा आता है वो आता है लैम्डा डी अपॉन डी। यानी आई कैन से फ्रिंज विड्थ ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इज सेम एंड दैट इज गिवन बाय लैम्डा डी अपॉन डी। फैक्टर्स अपॉन व्हिच फ्रिंज विड्थ डिपेंड, नंबर 1 wavelength of light। Fringe width depends upon 3 factors। First is the wavelength of light used। जितना wavelength बड़ा होगा उतना fringe width ज्यादा होगा, उतना better interference होगा। That's why the source of bigger wavelength are preferred for the study of interference। Although source should be monochromatic, monochromatic source होना चाहिए, wavelength single होना चाहिए, not multiple। तो monochromatic source of larger wavelength are preferred to study interference pattern। Second factor, separation between two slits।
टू स्लिट्स के बीच के सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिंज विड्थ. If slits are distant apart, then beta will be less. If slits are closer to each other, then beta will be more. So, to study better interference, slits should be close to each other. And number 3, distance of screen from the slits. Beta is directly proportional to this distance. जितना दूर स्क्रीन हम सेट करते हैं उतना बेटर इंटरफेरेंस स्टडी होता है, जितना पास सेट करते हैं उतना इंटरफेरेंस ब्लर हो जाता है. सो दिस वे वी कैन से टू स्टडी ए बेटर इंटरफेरेंस द वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी हाई, ऑल्दो इट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, द स्लिट्स शुड बी क्लोजर टू ईच अदर एंड स्क्रीन शुड बी सेट ए डिस्टेंस. दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस in Young's double slit experiment. Thank you and thank you for watching. Have a good day.